Ladies and gentlemen, on behalf of Captify Consulting Investor Relations team, I welcome you all to the Q3 and 9 months FY26 post-earnings conference call of Hari Om Pipe Industries Limited. Today on the call from the management team we have with us Mr. Rupesh Kumar Gupta, Managing Director, Mr. Ansh Gulas, Whole-Time Director, Mr. Amitabh Bhattacharya, Chief Financial Officer, and Ms. Rekha Singh, Company Secretary. As a disclaimer, I would like to inform you that this call may contain forward-looking statements which may involve risks and uncertainties. Also, a reminder that this call is being recorded. I would now request the management to brief us about the business and performance highlights for the period ended December 2025, the growth perspectives and vision for the coming year, post which we will open the floor for Q&A. Over to the management team. Good afternoon, everyone. This is Rupesh Kumar Gupta from Hari Om Pipe Industries Limited. Thank you for joining us today to discuss the performance of Hari Om Pipe Industries Limited for the third quarter and 9 months ended December 31, 2025. During the period, the company continued to demonstrate steady execution and operational consistency despite fluctuations in steel prices and a dynamic market environment. Our continued focus on value-added products, disciplined working capital management, and stable plant operations helped us maintain consistent margins and profitability. For the 9 months ended December 25, the company recorded sales volume of approximately 2.07 lakh tons, reflecting a 21% year-on-year growth. Revenue from operations stood at 1159.7 crores, also growing 21% year-on-year. EBITDA came at 145.5 crores, with EBITDA margin at 12.55%. EBITDA per ton remained healthy at around 7,039 rupees per ton, supported by our strong value-added product mix, which continues to contribute about 96 to 97% of total revenue. Profit before tax for the 9-month period stood at 62 crores, while profit after tax came at 45.6 crores, showing stable earnings despite price movements during the year. Overall profitability remains well aligned with our internal estimates. Coming to the third quarter, revenue from operations was 362.9 crores compared to 299.9 crores in Q3 last year. EBITDA for the quarter stood at 45.2 crores and margin at 12.47%, and EBITDA per ton remained at a healthy level of 6,613. Profit before tax was 15.6 crores and profit after tax stood at 11.6 crores. From an operational perspective, the galvanized pipes and coils segment continues to be the primary contributor, with both the Telangana and Tamil Nadu unit performing steadily. The integrated steel plant in Telangana facility has now reached near optimal utilization, and overall plant performance across units remains stable and efficient. Looking ahead, business conditions remain stable and operations across all units continue to perform steadily. Demand visibility remains healthy, and our focus on value-added products, disciplined execution, and operational stability continues to support overall performance. Based on the performance achieved so far and current business momentum, we remain confident on closing the financial year on a good note, as Q4 is always marked as good quarter for steel industry. I would now like to brief update you on our renewable energy subsidiary, Hari Om Power and Energy. The 60 megawatt solar project is progressing smoothly. The land development work across locations is moving as per schedule. A significant portion of land required for the project has been secured, including government land, which helps optimize project cost. We expect 31 megawatt capacity to commence operations by April 26 and balance capacity by end of August 26. To conclude, the company continues to maintain stable performance, consistent margins, and disciplined execution. With improving demand visibility, strong product mix, and ongoing strategic initiatives, we are confident of delivering steady growth and finishing the financial year on a good note. Thank you all for your continued support and participation. Thank you, sir.
We'll now begin the Amitabh, question and answer. Amitabh, would you like to add anything on the financial front? Or shall we proceed with Q&A? No, I think let's go with this presentation one so that people will have a very clear clarity on that. Screen. So we can go with the question. Okay. Numbers and all. Amit Khan. Thank you. We'll begin the question and answer session. All those who wish to ask a question, please use the option of raise hand. We'll take the first question from Aryan Bhatia. Please go ahead. Thanks for the opportunity, sir. My first question is regarding the drop in EBITDA per ton. So can you specify the reason? Is it due to the lower steel prices? And if it is, and I just wanted to know, after the anti-dumping duty that government has imposed, what is the steady state EBITDA per ton we are expecting? तो अरेंज जो अभी आप EBITDA पैटर्न हमारा देख रहे हैं, that is decent enough which has been calculated. आपने rightly बोला कि क्योंकि इतना fluctuation है market में related to your raw material pricing, including coal, iron ore and all सब stable है, but raw material की जगह पे finished के price थोड़े कम होने की वजह से थोड़ा सा difference पड़ा है, which is not a major one, but हमको लगता है कि जो हमारा शुरू से जो guidelines है, उस guidelines के साथ ही हम चल रहे हैं कि जो 7 से 8,000 के बीच में हमारा EBITDA रहेगा, वही maintain रहेगा. Okay, so from 7 to 8,000, got it. And so my second question is regarding again the anti-dumping duty. If I remember correctly, we used to import some of the HR coils due to the lower prices. But now that government has imposed the anti-dumping duty. So do you see some impact on our EBITDA per ton due to this only? Because we were previously importing some HR coil, which were cheaper than the current domestic. We thanks government in this particular participation. Anti-dumping duty हमेशा जो है ना इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद है in related to कि जितना भी fluctuation in the market है, क्योंकि अगर आप देखते हो कि जितना production enhance हो रहा है इंडिया में, चाहे वो जितने primary producers हैं, newcomers हैं, सभी लोग अपने बड़े capacities के साथ आ रहे हैं, to saving them and within the India premises के अंदर हम जो plan कर रहे हैं, I think anti-dumping duty अपने आप में एक अच्छा रोल प्ले कर रहा है and it is supported. तो हमको ये नहीं लगता है कि कहीं पर भी उसमें कोई इशू रहना चाहिए related to anti-dumping duty and other parameters. Okay, got it. And so my last question is on our we were planning a steel plant in Gadchiroli. So what is the outlook for that? So the MOU was signed by Maharashtra government for Gadchiroli project, which is under process. So the documentation part is going on. We are not aggressively having anything in hand now. Government has to allot us a land which is with MSDCL, and after that only we'll be getting some clarity after land allocation. So we are waiting for things to happen. We think by end of this year we will be getting the land in hand and moving ahead. I think 1.5 year, 2 years तक वहाँ कोई और movement नहीं रहेगा. We have to get that EC and other processes will be there. After that only things will be moving ahead. Got it. And so my last question is regarding our 30% guidance, volume guidance. So are we still intact, and what is our expansion plans for the next? Yeah, so this quarter we have been at 21% of our plans, and as you know, this fourth quarter will always be a beneficial one. And moving ahead, we are expecting new growth in our value-added chain also. And on the similar guidelines, we are working, and I think we'll be very near to the guidelines. Okay. And so my last question is, like, do you think there is enough demand? Because if I look at all the players, they are expanding their capacity quite rapidly. So, but if I look at the growth has not been that fast. So do you think there is a case of oversupply regarding the ERW pipes or black pipes? Because if I look. Yeah, so I mean, basically the policies including with the government and other things, which has disturbed as geopolitical issues are also a part of our commodity products and the pricing and other things. So basing on those lines, in India, especially in southern part of India like Hyderabad, Telangana and Andhra and Karnataka, we find a very good growth and we expect the things should move out well. तो कहीं हमको ऐसे नहीं लगता है कि ग्रोथ में या प्लानिंग में या डिमांड में कहीं कमी है.
It is all about between some months ऐसे हो जाते हैं जहाँ मानसून भी आ गया, कुछ और चीज आ गई, तो आगे पीछे होना है. बाकी demand wise we are excellently good, well placed in the market. Got it. Got it. Thank you. That's on my side. Thank you, Arvind. Thank you. We'll take the next question from Vijay Chauhan. Please go ahead. Yeah, thanks for the opportunity. So my first question in the realization side. So if we look at the current quarter realization, somewhere it's around 53,000. So how do we see it shaping up into the quarter 4 and FY27? So quarter 4 will always be a beneficial one, and the average pricing which should minimum move around 55,000. What is our expectation? Between 54,500 to 55,000, which is our expectation, and we feel that the demand and the surge in the prices is already being accepted by the market, or अभी market के prices अभी बढ़, so we expect a good hike in the price also. Okay, so around 54, 55 is what we are expecting for quarter 4. It's an average pricing. Okay. And on the volume side, so the guidance on that 30% volume growth. So if I recollect, we had done in quarter 4 previous year, somewhere around 74,000 in quarter 4. So like, are we expecting the same like trajectory going at maybe 95,000 or 1 lakh as per your visibility, because already 1 month is already over? So Yeah. would you like to put some light so that we get like some clarity on that part? Yeah, 90,000 plus we are, it's a thing we can easily put on our things, or as you know, this 21% is already been touched upon, and moving ahead, it will automatically grow on. So I think 95,000 easily हम लोग पकड़ लेंगे, easily हो जाएगा, 90 to 95. Okay. So it will be around 30, 27, 28% kind of growth that you are targeting on the Yes. quarter 4 versus this one. And Yeah. which are the segments or sectors like you are seeing much demand in this quarter 4 and also from the long term based on your assessment on the budget? So budget has not given much of support to pricing, so it was normal only. Apart from that, जितना हमारा dealers network है, that is already been grown up. और अभी जितना भी हम आगे ऐड भी कर रहे हैं, तो अगर हम डीलर चैनल को जो बढ़ा रहे हैं अभी, every year on year it is getting grown up. तो मार्केट के साइज को एंड कैपेसिटी को हम अलग अलग लेवल पर ले जाके जितनी भी मार्केटिंग एंड अदर प्रोसेसेस हैं, उसको करके हम अपने आप को एक अच्छे प्लेसमेंट के साथ जा रहे हैं, जिसमें ब्रांडिंग इवैल्यूएशन भी अच्छा हो रहा है, और साथ में डिमांड ऑफ हरिओम पाइप्स इज आल्सो गुड. Okay. That will be all from my side. Thank you and good luck for the future. Thank you. Thank you. We'll take the next question from Smith Gala. Please go ahead. या थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी. सर, एक चीज हमको ये मेरे को समझनी थी कि अपन इस साल 30% वॉल्यूम ग्रोथ का जो गाइडेंस था उससे वो मीट थोड़े थोड़े परसेंटेज से नहीं हो पाएगा, एंड अगले साल भी अपन टारगेट कर रहे हैं कि अपन 30% के आसपास वॉल्यूम ग्रोथ कर पाएंगे. तो वो जो ग्रोथ आनी है वो कहाँ से आनी है, क्योंकि नए मार्केट्स में जो डीलर का नंबर आप प्रेजेंटेशन में दे रहे हो वो डीलर में ग्रोथ दिख नहीं रही है. तो एग्जिस्टिंग सदर्न मार्केट से ही 30% ग्रोथ दिख पाएगी, क्योंकि मनसून या फिर जो ये मेटल की प्राइसेस अप डाउन, मनसून तो एवरी ईयर रहेगा ही, तो उस हिसाब से वो 30% गाइडेंस अपन इफ नए मार्केट्स में अपन को इतना सक्सेस नहीं मिल रहा है तो कैसे होगा? तो इसमें स्मिथ थैंक यू. अभी जो डीलर का नेटवर्क है, दैट इज ओनली वन पार्ट ऑफ द बिजनेस. अदर पार्ट इज बेसिकली जो ओईएम्स वगैरह में जो एड ऑन्स हो रहे हैं एंड जो प्रोडक्ट मिक्स ऐड हो रहा है. जैसे अभी जीआई का जो पाइपलाइंस वगैरह का था, जीपी के जो लाइंस को हम अभी तक एनहांस नहीं कर रहे थे, नाउ ओईएम्स के अंदर हम कॉइल्स वगैरह सप्लाई करना चालू कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ हमारा वैल्यू एडिशन भी ज्यादा हो रहा है और मार्केट एक्यूरेंस भी अच्छा बढ़ रहा है. एंड जो न्यू ओईएम्स के अलावा जो गवर्नमेंट सप्लाईज वगैरह भी है, टेंडरिंग है, इस पर भी अभी हम काफी क्लोजली काम कर रहे हैं. तो वहां से भी हमको ऐसा लगता है कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड विजिबिलिटी इन द market will be there. Add on to that, in our earlier presentation also, we have clearly mentioned that our B2B sales is 15%. Now it is gone up to 21% till 9 months. So slowly and gradually, we are going into that B2B, who is corporate clients and OEM manufacturers.
So we are supplying to them. In that way also, the whatever our target of demand, that we can match. ओके सेकंड क्वेश्चन, एक तो अपना डेप्रिसिएशन जो था वो Q1 में अराउंड 14 करोड़ था और Q3 तक अभी वो 18 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है, जबकि कोई मेजर कैपेसिटी एडिशन अपन ने करी नहीं है। तो ये इतना सिग्निफिकेंटली ज्यादा डेप्रिसिएशन आने का फैक्टर्स क्या है? ये बेसिकली आरओयू एसेट्स जो हम लोगों ने अल्ट्रा पाइप्स का जो लॉन्ग टर्म लीज एग्रीमेंट के तहत वो प्लांट को एक्विजिशन किया था, उसका ही आरओयू एसेट्स का डेप्रिसिएशन ऐड ऑन हुआ है। एज पर इंडेक्स के हिसाब से वो आरओयू एसेट्स में ऐड ऑन हो जाता है। सर लेकिन आरओयू एसेट्स अपना अल्ट्रा पाइप्स का एक्विजिशन तो Q2 में भी आ चुका था, तो Q2 से भी Q3 में भी काफी इंक्रीज है डेप्रिसिएशन में। हाँ, Q2 में पूरे 9 मंथ्स का नहीं है, पूरे 3 मंथ्स का नहीं था, वो लेटर ऑन हुआ था, मतलब सेकेंड हाफ ऑफ द Q2, मतलब आई थिंक इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड में हुआ था, जुलाई तो एंड अगस्त में। तो एक ही महीने का मिला था, यहाँ पे पूरे 3 महीने का मिला था इसके। ओके, सो ये अभी स्टेडी स्टेट, अभी इससे ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। नहीं बढ़ना चाहिए। आपका देख सकते हो, आपका आरओयू एसेट्स जो आया है टोटल में 18.02 एज ऑन December 25 है, 9 मंथ्स की, ठीक है ना। और अगर हाँ, आप सितंबर का देखेंगे तो 6.02 था, जहां से आपका दिसंबर मतलब Q2 वर्सेस Q3 अगर देखेंगे तो टू बी प्रिसाइज 6.46 वर्सेस 6.02, जिसके अंदर से आरओयू एसेट्स में था 1.22 Q3 में और Q2 में था 0.64, ठीक है ना। ओके। और एक लास्ट क्वेश्चन, फिर मैं क्यू में वापस आऊंगा। अभी एक थोड़ा लॉन्गर टर्म विजन से अगर मैं बात करूं FY30 तक, तो FY30 तक भी क्या अपन वो 30% वॉल्यूम ग्रोथ का टारगेट लेके चल रहे हैं? और फिर अपनी कैपेसिटीज अगर ऑप्टिमम कैपेसिटी के हिसाब से देखूं तो अराउंड एंड ऑफ FY27 तक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन 70-75% तक पहुंच जाएंगे। तो उसके बाद का कंपनी का क्या प्लान है वो टू बढ़ते हुए वॉल्यूम्स को कैसे केटर कर पाएगी कंपनी FY30 तक लॉन्गर टर्म विजन? देखिए हरिओम बेसिकली एक एग्रेसिव कंपनी है जिसके अंदर बहुत स्टेबिलिटी के साथ में हम लोग अपने एक्शन प्लान को करते हैं। इट इज नॉट कि एवरी ईयर विल जंप ऑन विद सम गुड अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल। इट इज ऑल अबाउट इवैल्यूएशन ऑफ द अपॉर्चुनिटी। जहाँ कोई अपॉर्चुनिटी या एड ऑन टू द बिजनेस हमको मिलेगा, वी आर मूविंग वेरी एग्रेसिवली ऑन इट और उसको हम स्टडीली इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आप पिछले साल का भी अगर आप देखते हो तो हमने आपको लास्ट का अर्निंग कॉल में भी यही बताया था कि हम स्टेबिलिटी के साथ में सेटिंग ऑफ अपने प्रोडक्शन को हम पूरा मैक्सिमाइज करेंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी भी हम वही काम करते जा रहे हैं कि अभी जैसे हमने बताया कि आईएसपी का अभी मैक्सिमाइज हो चुका है हमारा। अब उसके बाद अभी हम ध्यान लगा रहे हैं कि जीपी प्रोडक्ट्स एंड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में और कैसे हम आगे बढ़े। अब जैसे ही कोई और एक्विजिशन का अपॉर्चुनिटी मिलेगा या और कोई तरीके का एड ऑन होगा, उसमें फिर वापस उतना करते ही जाएंगे। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि वॉल्यूम्स अगर अपन एंड FY30 तक भी कंसिस्टेंटली 30% के आसपास का ग्रोथ देख रहे हैं वॉल्यूम्स में, और फिर वो कैपेसिटी अपन थ्रू एक्विजिशंस बढ़ाने का सोच रहे हैं कि अपन नया केपेक्स करेंगे, कि अपने वो नजरिए से देखना था मेरे हाँ, तो मगर 2030 तक विदाउट कैपेक्स तो कुछ हो नहीं पाएगा ना सुमित। और उसमें अभी बेसिकली हम जो अपॉर्चुनिटीज की वेट कर रहे हैं या जो बात कर रहे हैं, दैट विल कम अक्रॉस द लाइंस ओनली। तो अभी जो नेक्स्ट ईयर का हम ये बोल सकते हैं कि हम आपको वापस जो है 30% तक की ग्रोथ पैरामीटर्स पे चलेंगे। ओके ओके हाँ, वैल्यू एडिशन के ऊपर फोकस करने में थोड़ा सा टाइम लगता है ओके और बाकी की जो चीजें, जो डीलर्स वगैरह बढ़ाना, वो क्वांटिटी बढ़ाना और बेचना, वो एक छोटा काम है, बट वो रेगुलर प्रोसेस है। ओके, ठीक है, मैं आई ज्वाइन बैक द क्यू। Thank you, Smith. We'll take the next question from Kashish Gandotra. Please go ahead. थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी सर। दो क्वेश्चन है मेरे एंड से। फर्स्टली, आपको कब लगता है कि मेरा रेवेन्यू ग्रोथ पैट ग्रोथ पे भी आने रिफ्लेक्ट करने लगेगा? लास्ट 2 ईयर से रेवेन्यू ऑल्दो 20-25% से बढ़ रहा है, बट पैट इज ऑलमोस्ट गोइंग इन सिंगल डिजिट्स। सो उसके रिगार्डिंग अगर आप थोड़ी आइडिया दे पाए तो वो हेल्पफुल रहेगा।
इसमें जो पैट है बेसिकली उसमें तो जो एक सेकंड आप रिपीट सर करेंगे क्वेश्चन प्लीज। हाँ ये सर, मेरा क्वेश्चन ये था, अगर आप देखेंगे पिछले 2 सालों से हमारा रेवेन्यू 20-25% से बढ़ रहा है, बट मेरा पैट ऑलमोस्ट सिंगल डिजिट से बढ़ रहा है। सो वो ग्रोथ पैट लेवल पे कब रिफ्लेक्ट करने लगेगी? जैसे अगर आप इस क्वार्टर में भी कंपेयर करें, मेरा रेवेन्यू 20% ऊपर था, EBITDA 20% ऊपर था, बट पैट वॉज ओनली अप बाय 5-6%। सो हम कब जाके एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मेरा पैट भी 20-25% से बढ़ने लग जाएगा? सर बेसिकली दो दो पैरामीटर है देखने के लिए। एक पैरामीटर है कि आपकी एबिटा कंसिस्टेंटली 12.5 के ऊपर आ रहा है। एबिटा के बाद आपको डिप्रिसिएशन एंड फाइनेंस कॉस्ट आ रहा है। तो अगर एक बार के लिए फाइनेंस कॉस्ट में भी अगर आज के डेट में हम लोगों का एवरेज फाइनेंस कॉस्ट है ऑलमोस्ट ऑल वर्किंग कैपिटल के हद तक 7.79% के आसपास की हम लोगों की फाइनेंस कॉस्ट है। ओके। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आ रहा है 7.9 के आसपास आ रहा है, विच इज प्रिटी गुड इन द प्रेजेंट फाइनेंशियल मार्केट। हाँ, कुछ टर्म लोन है जो टर्म लोन का रेट थोड़ा हाई है। एंड मोर ओवर दैट कि इसके अंदर जैसा मेरा Q3 2026 की अगर मेरा टोटल फाइनेंस कॉस्ट 13.52 है, उसके अंदर से 13% जो है मेरा EIR कॉन्सेप्ट में CFI में लीज लाइबिलिटी के ऊपर जो इंडेक्स के नॉर्म्स के हिसाब से मोटा मोटा लगा है, जिसका एक्चुअल कैश आउटफ्लो नहीं था। ठीक है ना। ठीक अ, है। तो उसके एंगल से अगर आप देखेंगे तो हमारा ये जो टारगेट है 30+30% वॉल्यूम ग्रोथ, तो मोटा मोटा हमारा जो पुराना पैट का रेट था अभी लगभग लगभग नियर बाई हम लोग लास्ट ईयर 4.69 के 5 के आसपास दिए थे। तो अभी 1-2 साल तक हमारा 5 के आसपास ही चलेगा। उसके बाद सब्सटेंशियली ये ग्रोथ होना शुरू होगा, जैसे थोड़ा सा आपका लाइफ ऑफ द यूजफुल एसेट्स का भी कम हो जाएगा इनिशियल लेवल में, और उसके हिसाब से आपको दोनों जगह में, और ये टर्म लोन का भी जो लॉन्ग टर्म लोन्स है इसका भी जैसे ही आपका मेजर पोर्शन डाउन हो जाता है तो फाइनेंस कॉस्ट कम हो जाएगा, क्योंकि वर्किंग कैपिटल में हम लोगों का कोई भी तरीके की एनहांसमेंट और इंक्रीज नहीं हो रहा ना कर। राइट सर, तो नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए अगर हम 20-25% जितने से भी रेवेन्यू ग्रो करेंगे, सिमिलर काइंड ऑफ अ ग्रोथ वी कैन एक्सपेक्ट एट अ पैट लेवल आल्सो। विल दैट बी द राइट जजमेंट? नियर बाई। Okay, fine. So thank you. So second question is regarding like you mentioned हमारा रिन्यूएबल एनर्जी वाला प्लांट अप्रैल 26 से स्टार्ट होगा। सो आपको लगता है फर्स्ट 2-3 क्वार्टर्स में वो थोड़ा लॉस कंट्रीब्यूट करेगा बॉटम लाइन पे, या फिर यू थिंक फर्स्ट क्वार्टर एटलीस्ट इट विल बी नियर अबाउट ब्रेक इवन? इट इज नियर बाई ब्रेक इवन रहेंगे। इट विल बी नियर इवन ब्रेक इवन रहेंगे, क्योंकि उसका जो है ना फर्स्ट 2-3 क्वार्टर्स में आप जो बोले हैं उसका डिप्रिसिएशन इम्पैक्ट ही आएगा, बट उसमें कोई कैश आउटफ्लो नहीं रहेगा। बुक्स के हिसाब से ऐसा दिखेगा तो वो ब्रेक इवन ही रहेगा, क्योंकि डिप्रिसिएशन कॉस्ट को इट इज नथिंग बट इंटरनल कैश एक्रूवल। तो उसको वो एंगल से देखे तो ये ब्रेक इवन ही रहेगा सर। फाइन सर, एक डेप्रिसिएशन क्वांटम बता सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी में कितना क्वांटम रहेगा डेप्रिसिएशन का? इफ यू कैन जस्ट गिव अ नंबर दैट वुड बी हेल्पफुल। इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, यह पोजीशन में मेरे पास अभी रेडीली अवेलेबल नहीं है। आप मुझे मेल कर दीजिए, मैं उसके बाद एक बार चेक करके आपको रिप्लाई दे दूँ। श्योर सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। Thank you, Kashish. We'll take the next question from Pranit Reddy. Please go ahead. Yes, Pranit. Hello. We'll move on to Sagar Shah. Please go ahead. Hello, am I audible? Yes. Yes, Sagar. Yeah. First of all, thank you for the opportunity and congratulations, sir, अच्छे नंबर के लिए। सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि ये क्वार्टर में आपने एक सब्सिडरी फॉर्म की मेटल मार्ट प्राइवेट लिमिटेड करके। सो उसका इनकॉर्पोरेशन का, और आपने बोला है कि उसमें आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं बेसिकली, एंड हरिओम पाइप्स विल होल्ड अराउंड 70% ऑफ द कंपनी। उसमें आप ट्रेडिंग ऑफ मेटल एंड स्टील एलाइड प्रोडक्ट्स का बिजनेस आपने कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में दिया हुआ है। सर तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे वो जानना था कि लॉजिक क्या है सर, ये सब्सिडरी, और आपका विजन क्या है टू एक्चुअली फॉर्म दिस सब्सिडरी।
और किस तरह से हेल्प करेगी बिजनेस में ऑन अ कंसोल बेसिस? इसके दो रीजन है सर। एक तो है ये मेटल मार्ट प्राइवेट लिमिटेड वही प्रोडक्ट बेचेंगे जो प्रोडक्ट हरिओम एट प्रेजेंट नहीं बनाते हैं, और ओईएम्स वगैरह को सप्लाई करने के लिए, क्योंकि हरिओम का जो प्रोडक्ट हरिओम ओईएम को सप्लाई करता है, उसके साथ साथ भी ओईएम्स बहुत सारे प्रोडक्ट स्टील प्रोडक्ट्स लेते हैं जिसको हरिओम नहीं बनाते। तो मार्केट की राइट। रियलिटी, मार्केट की प्रॉफिटेबिलिटी एंड मार्केट की डिमांड को देखते हुए हरिओम cannot go without a calculation and without fact and figure for any further capex. So that is why we are creating a platform where the trading margin is very less. And if I am not created as a subsidiary company, then this put on our directly to our balance sheet, and which is in fact to very difficult for us to distinguish between the what are the trading sales and what are the manufacturing sales. So far हरिओम ट्रैक रिकॉर्ड इज 12.5 के ऊपर एबिटा दे रहे हैं। अभी कल के दिन मैं मेटल मार्ट सब्सिडरी नहीं बनाता था, और उसके अंदर मैं कुछ बिल टू शिप टू मॉडल में अगर कुछ भी ओईएम को सप्लाई करता था फ्रॉम दी अदर मैन्युफैक्चरर, देयरफॉर ऑटोमेटिकली एबिटा परसेंटेज डाउन होने से आप लोगों का ही क्वेश्चन आ जाएगा कि सर ये क्यों हुआ। तो ये चीज की अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को देखते हुए हम लोगों ने ये सब्सिडरी कंपनी क्रिएट किया है। ये सब्सिडरी कंपनी दो काम करेंगे। एक तो आपका जो ट्रेडिंग प्रॉफिट है वो हरिओम के बुक्स में आएगा, दूसरा कस्टमर्स बेस, कस्टमर डिमांड एंड प्रोडक्ट की न्यू डिमांड को देखते हुए हरिओम को हेल्प करेगा कि फ्यूचर एक्सपेंशन हरिओम कौन सी लाइन ऑफ एक्टिविटी के ऊपर करेगा, कौन सी तरफ करेगा। एंड मोर ओवर दिस कंपनी इज एक्चुअली फोकस्ड ऑन वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जहां पे हरिओम की प्रेजेंस अभी एक तरफ से नेग्लिजिबल है। तो उसकी मार्केट को प्रैक्टिकल टेस्ट करने के लिए हम लोगों ने ये प्लेटफॉर्म चालू किया है, ये कंपनी इनकॉर्पोरेट किया है, और जिसके बीइंग होल्डर्स आपके पास पूरा ट्रांसपेरेंट अकाउंट आएगा जिसमें आप समझ सकते हो कि कौन सा चीज हरिओम एज ए मैन्युफैक्चरर कितना कमा रहा है, एज ए ट्रेडिंग कितना कमा रहा है, उसमें डिमांड क्या है, इसमें डिमांड क्या है, और हरिओम का फ्यूचर ग्रोथ क्या है। पूरे पैरामीटर सबको समझ में आ जाएगा विदाउट एनी कंफ्यूजन। तो पूरे कॉर्पोरेट को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन ट्रांसपेरेंसी के साथ। सर पर वो कौन से स्टील प्रोडक्ट्स हैं जो ओईएम्स आपसे मांग रहे हैं और आपके पास नहीं है और उसका आप ट्रेडिंग करने वाले हैं, और दूसरा उसके मार्जिन्स भी सेम है? उसके बहुत सारे जो ना ऐसे मल्टीपल इंपोर्टेड स्टफ्स हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन हो गया या ऑटोमोबाइल डिवीजन हो गया या ऑयल एंड गैस हो गया, ट्रांसफॉर्मर्स हो गया, बहुत सारी जैसे प्रोडक्ट्स हैं जो मल्टीपल रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। It all depends on the tie-ups with the OEMs and what are they demanding and what are we getting that produced and giving it. It is not fixed with any particular region or particular product. वो सारी changes होते रहेंगे। और उसका ग्रॉस मार्जिन भी मोटा मोटी सेम रहेगा सर? विदाउट मार्जिन हरिओम काम नहीं करेगा सर। वी विल वर्क ऑन द मार्जिन्स वेरिन जहां पर प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी तो ही हम जाएंगे, अदरवाइज विल नॉट गो इनसाइड इट। तो ग्रॉस मार्जिन आप एज ए मैन्युफैक्चरर हरिओम जो कमा रहा है मार्जिन को तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो ट्रेडिंग टर्म्स में। इट इज वेरी क्लियर, दैट इज व्हाई वी आर क्रिएटेड सेपरेट सब्सिडरी। अदरवाइज हमारे सब्सिडरी क्यों क्रिएट करना है? पर सर सब्सिडरी आपने भले फॉलो बनाई है, मगर आपके अगर ट्रेडिंग में उसमें अगर मार्जिन कम है तो कंसोल लेवल पे तो मार्जिन डाइल्यूटिव होगा ना? नहीं सर, कंसोलिडेशन में होगा, बट आपको स्टैंड अलोन में तो पता चल जाएगा ना, क्योंकि अगर आपको कोई चीज की कैपेक्स करना है और उसमें मैन्युफैक्चरर का इतना मार्जिन है, ये कब मालूम पड़ेगा? जब तक आप वो प्रोडक्ट नहीं बेचोगे। तो बीइंग ए मैन्युफैक्चरर आप उसके पीछे हजार करोड़ की कैपेक्स तो कर नहीं सकते बगैर उसके टेस्ट किए। तो ये टेस्ट एंड ट्रायल के लिए हम लोगों ने किया है। और नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ मार्केट, जैसे ही प्रीवियस पार्टिसिपेंट ने क्वेश्चन किया था कि आपका डीलर नंबर्स के हिसाब से क्या आप पहुंच पाओगे, ये हम पहुंच पाएंगे, तभी पहुंच पाएंगे जब नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न पे साइड में भी हमारा पेनिट्रेशन होगा। तो पेनिट्रेशन होने के लिए आपको तो कुछ प्लेटफॉर्म तो चाहिए ना। इसमें हरिओम का कुछ भी डेंट, एक्चुअल हरिओम को आज आप देख रहे हो स्टैंड अलोन में, अगर समझ लीजिए एक बार प्रैक्टिकली सोच लेते हैं, मेटल मार्ट को हटा देते हैं हम, हरिओम आज जो है और जो बिजनेस कर रहा है, तो प्रॉफिटेबिलिटी आपको स्टैंड अलोन में उतना ही दिख रहा है। अगर कंसोलिडेशन होने के बाद आपका कंसोलिडेशन में कुछ कम ज्यादा दिख रहा है
तो भी तो बीइंग ए शेयर होल्डर आपको समझ में क्लियरली आ रहा है कि हरिओम एज ए मैन्युफैक्चरर तो उतना ही मार्जिन कमा रहा है. टुमारो हरिओम it will start that kind of product also manufacturing, then Hariom margin will be boost up. ये क्लैरिटी आपको भी आना है, ये क्लैरिटी मुझे भी आना है. इसके लिए ये कंपनी चालू किया है. ओके ठीक है सर। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन अभी जीपी पे रहेगा सर। तो क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि आपका जो नेक्स्ट ग्रोथ है ज्यादा करके आपका यूटिलाइजेशन जनरल और वैल्यू एडेड में भी ज्यादा एमएस ट्यूब्स और स्कैफोल्डिंग सिस्टम्स में ज्यादा आ रहा है। तो मुझे अभी जीपी का यूटिलाइजेशन चाहिए था, जीपी पाइप्स और जीपी कॉइल्स का सर मिला के व्हाट इज द यूटिलाइजेशन राइट नाउ, सिर्फ जीपी सर। सिर्फ जीपी में आपका देखिए सर, अभी तक हम लोगों ने जो प्रोड्यूस किया है 9 मंथ्स में, मैं एक बार प्रेजेंटेशन रन थ्रू कर दूं बिकॉज मैं शायद मैं बता रहा हूँ, एक ही सेकंड से. हाँ जी सर। आपका सर टोटल जो कैपेसिटी है वो ऑल आउट दोनों मिला के अराउंड 3 लाख टन है ना, कैल्वेनाइज पाइप्स एंड कॉइल्स। अभी देखिए गैल्वेनाइज में हम लोग 9 मंथ्स में टोटल कंट्रीब्यूशन किए वॉल्यूम में, टू बी प्रिसाइज 77,230 मेट्रिक टन प्लस 51,000, मतलब आपका हो गया 1,22,046 मेट्रिक टन 9 मंथ्स. तो ऑलमोस्ट 40% यूटिलाइजेशन पे चल रहा है राइट सर? हाँ 50% के आसपास चल रहा है. हाँ तो 50 ये साल के एंडिंग तक 50% पे जाएगा तो आई थिंक जीपी का आपका रियलाइजेशन और मार्जिन भी थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि वैल्यू एडेड में भी इट्स X+1. So, can we expect some sort of realization increase if we scale this kind of product more? यस 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 डेफिनेटली रियलाइजेशन आपका इसका ज्यादा है. मार्जिन के हद तक जो है ना, मार्जिन में इसका थोड़ा सा कम है, क्योंकि एचआर कॉइल हम लोग परचेस करते हैं, ना कि हम खुद बनाते हैं. तो तो उसका रॉ मटेरियल है वो. हाँ, तो उसके लिए थोड़ा सा मार्जिन में कम रहता है, उसमें एमएस ट्यूब्स का मार्जिन ज्यादा रहता है. बट यस यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट, रियलाइजेशन ज्यादा है. और अगर इसकी क्वांटिटी आपकी बढ़ती है तो ग्रॉस रियलाइजेशन के साथ साथ आपका नेट मार्जिन भी थोड़ा सा इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो कम हो जाएगा ना तब प्रोपोर्शन. तो उसमें आपका पर टन एबिटा इंक्रीज होगा. जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसका यूज हो जाएगा. और इसमें हम लोगों का आज के डेट में टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी 3 लाख है, जिसके अंदर अगर हम लोग कॉइल टर्म्स में गए तो रादर देन पाइप, तो हमारा ऑपरेशनल लेवल थोड़ा इंप्रूव होके और ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं. तो अगर नेक्स्ट ईयर सर जो हम लोग 20% ग्रोथ का जो गाइडेंस दे रहे हैं वॉल्यूम टर्म्स में, उसमें आई थिंक कंट्रीब्यूशन ज्यादा जीपी का तो रहेगा राइट सर? यूटिलाइजेशन उसका ही कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहेगा ना सर? एब्सोल्युटली सर, करेक्ट. ओके ओके, थैंक यू सर सो मच एंड ऑल द बेस्ट सर. थैंक यू. थैंक यू. Thank you, Sagar. We'll take the next question from Pranit Reddy. Please go ahead. Am I audible? Hello? Yes, Pranit. Yeah. Given that our Anantapur sponge iron plant is around 300 to 400 kilometers away from existing pipe mills, and pipes are very heavy to transport, would it make strategic sense over the long term to evaluate a small to mid-size pipe mill near Anantapur? With infrastructure and industrial development happening in Andhra, so such a unit could act as a feeder plant and serve nearby markets more efficiently. Yeah, so Pranit, basically वहाँ पर जो unit है, that is only we are holding an sponge iron unit, and all the sponge iron which has been manufactured is been transported to Hyderabad unit. So now recently the public hearing results are coming out, and recently 2 days back we had a meeting also online in which we will be having the clarity will come for the EC. And further moving, we can plan out the cleaning production and other things also. So moving ahead, we never know if at all the opportunity is there, the market conditions are there, we can go for additional capacities in Anantapur also, because we are having the land as well, and the government of Andhra is also cooperative in those terms, and we can move ahead in that plans also. Yes, sir. Because of there is more industrial activity happening there.
Yeah, and the demands are also good in Andhra. Moving ahead, we see the Andhra will be a very strong player and in terms of consumption, and we can get the help from the government also. My second question is, do you see Hariom entering into branded play, and which 1-2 executions, if done well, could truly change the company's trajectory? Sorry, I haven't got that. Do you see Hariom entering into branded play? Yeah, I mean, the Hariom brand is well accepted in the market, and people are demanding that particular quality, what we are delivering. It's the process, what we are driving on-time delivery, quality, rust-free material, bug-free material, all these things with an ISI grading and all, everything is being provided to the customers. So customers are very happy, and repeatedly, if all you see, our repeated customers are not going anywhere, and we are adding on new customers. Okay, sir. And which 1-2 executions in longer term, if done well as per you, would really change the company's trajectory? It's a OEMs and the government projects what we will be supplying will also help us out in the profitability and the numbers. Okay, sir. Yes. Right now, state is giving the most revenue, sir, revenue contribution. Revenue from the state. Yeah, like state-wise bifurcation or something like that. Which state is giving more revenue, and which state? So basically, our major revenue is coming from Karnataka, Kerala, and third position is Andhra Pradesh. Okay, thank you, sir. So first one is Karnataka, second Kerala, and third is Andhra Pradesh. Okay, so do we have a DFT installed in our plants, or are we planning? DFT. Yeah, direct forming technology, something like that. That is in Ultra is there, but that is earlier version of DFT, present version of technology. Okay, are we planning to upgrade anything, or is it fine? Not exactly DFT. Okay. And what about any color-coated products? Are we planning to add any infrastructure? Not now. We are not trying to add on any color-coded products and all. But value-added products, yes. CR we are doing excellently well. Galvanizing we are doing good, and coil galvanizing also we are doing very good. And annealing things are also being padded out. CRFH coils, CR coils, all these things are in place basically. So we are not planning for. We already have color-coated products, sir? No, we don't have any color-coded products. Oh, okay. Thank you. Thank you. Thank you, Prani. We'll take the follow-up question from Smith Gala. Please go ahead. Yeah, thank you for the follow-up. जो अपनी ट्रेडिंग सब्सिडरी है वो ऑपरेशनल कब से चालू होगी, और मेरे को कोई नंबर्स में एग्जैक्टली एक्सपेक्टेशंस नहीं चाहिए, क्वालिटेटिवली मतलब अपन कितने मतलब क्या रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन है हमारा वो ट्रेडिंग सब्सिडरी से? अभी उसका कोई ऐसे गाइडलाइन देना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा स्मिथ, क्योंकि बेसिकली इट्स अ न्यू टीम व्हिच इज रियली वर्किंग वेरी क्लोजली टू दैट, और इट इज ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटी एंड द सेफ्टी ऑफ द अमाउंट व्हिच विल बी इंकरिंग. आज क्रेडिट मार्केट के अंदर देने के बाद इट इज मोर अबाउट रिसीविंग द अमाउंट्स आल्सो. तो वो सारे पैरामीटर्स को देखने के बाद इट विल इनिशियली स्टार्ट विद अ स्मॉल वॉल्यूम ओनली, एंड आफ्टर अ क्वार्टर टाइम ओनली विल कम टू नो व्हाट एग्जैक्टली विल बी द नंबर्स. It is only incorporation because of bifurcation and governance part हमने इसको अलग किया है. आने वाले टाइम के ऊपर जो जो हमारा ट्रेडिंग का एक्टिविटीज रहेगी जिसके लिए विंग पूरा अलग रहेगा, वो विंग अपने हिसाब से डिफाइन करके हमको नंबर्स देगा. तो आई थिंक ये स्टार्ट भी हम करेंगे मार्च एंड या अप्रैल फर्स्ट वीक में ही हम इसके ट्रेडिंग एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे. ओके, मार्च एंड और अप्रैल में स्टार्ट होगा. और आपने बताया कि इस पे नई अलग टीम लगी हुई रहेगी, तो इनिशियल फेजेस में अपना एम्प्लॉय एक्सपेंसेस थोड़ा एलिवेटेड दिखेगा, वो जो कंसोल लेवल पे मार्जिन थोड़ा और प्रेशर में डालेगा. बहुत ज्यादा ऐसे नहीं होगा, क्योंकि अभी जो गुजरात मार्केट है या महाराष्ट्र मार्केट है, इसमें 1 या 2 या 4 आदमी लगेंगे, बहुत बड़ी टीम साइज नहीं लगेगी. और जो एग्जिस्टिंग टीम प्लेयर्स हैं हमारे, यही वो चीजों को देखेंगे. तो अगर देखेंगे तो हमने कई प्रोफेशनल्स और हायर किए हैं अभी कंपनी में. दे हैव बीन पार्ट ऑफ हरिओम फैमिली नाउ. तो अब इन्हीं के ऊपर सारी जिम्मेदारी रहेगी जो आगे लेके चलेंगे. ओके, थैंक यू. थैंक यू जी. Thank you, Smith.
Anybody who wishes to ask a question, please use the option of raise hand. Sir, since there are no further questions, would you like to give any closing comment? तो बेसिकली मेरा क्लोजिंग कमेंट है कि हरिओम जो है ना बहुत ही स्टेडली और बहुत संभल के काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है अपनी पॉलिसीज को, अपने गवर्नेंस पार्ट को और अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत अच्छी तरह लेके चल रहा है. जस्ट ए क्लोजिंग रिमार्क, I would like to reiterate that Hariom Pipe Industries continues to remain focused on stable growth, disciplined execution, and long-term value creation. Despite market fluctuations, the company has maintained consistent operational performance, supported by a strong value-added product mix and efficient utilization of capacity. Our strategic initiatives, including expansion in value-added segments and progress in renewable energy, continue to strengthen the company's long-term positioning. With steady demand visibility and improving operational stability, we remain confident of closing this financial year on a good note and continuing our growth journey in the coming periods. We sincerely thank all our investors, analysts, lenders, partners, and employees for their continued trust and support. Thank you all. Thank you, sir. We thank the management team and all the participants for joining on this call. This brings us to the end of this conference call. Thank you.